Good evening, students, and this is my 6th episode. In last episode we saw the introduction and two broad classification of arithmetic progression. We saw sequence and we saw series as well, and I think you all have learned the concept, what is the broad classification that chapter has given. And now it's time to go into the exercise, and the exercise 1.1 in arithmetic progression for SSLC students. The first main that is given is, they have given 4 set of questions here, and they are given situations. They are asking us to analyze the situation and then come to conclusion whether the given situation is an arithmetic progression or not. If it is so, please give the reason as well. So here, if you notice, the first main statement given to us is, in which of the following situations does the list of numbers involved make an arithmetic progression? So let us see what is the situations given to us. The first situation given to us is the taxi fare after each kilometer, when the fare is rupees 15 for the first kilometer and rupees 8 for each additional kilometer. So they have told, if you want to pay a taxi fare for first 1 kilometer to travel, they are charging rupees 15, and subsequently if you start going additional kilometer for 1 more kilometer, beyond 1 kilometer, they are going to charge rupees 8. So this situation, let us put in terms of a sequence and then analyze whether it is arithmetic progression or not. So let us see this solution. So as per the given data, for the first kilometer the taxi fare is rupees 15, so 15 rupees. But for additional kilometer, suppose I take here 2 kilometer, for 1 more kilometer they will charge 8 rupees more. That means 15 rupees plus additional charge 8. So 15 plus 8 is 23, correct? And if I continue going 3 kilometers, more 8 you should add to this. 23 plus 8, 31, and so on. So you understood what is the system here and what is the sequence generating here. 1 kilometer rupees 15 by default, but for additional kilometer 8 rupees more. So 15 plus 8, 23, 23 plus 8, 31, and so on the charges takes place. So now this situation, do you think this is arithmetic progression? Yes, of course, quite common and quite obvious that you are adding common difference of 8, 8, 8. So the reason to declare that this is arithmetic progression is very simple. We can say the difference, that is the second term minus first term, or the difference, that is the third term minus second term. If you subtract 23 minus 15, you are going to get 8. In this case, 31 minus 23 is also 8. So the common difference, since it is consistently same, so we come to conclusion this given situation is an arithmetic progression. So what we can conclude, this is in arithmetic progression. Very simple. But see, this is what I was saying to you all. The problems are not on the similar pattern, so they are going to change the pattern, and then they will expose to you for different types of varieties of questions. This is another miscellaneous example. Let us understand this situation. What is that being told here? First of all, the second situation is the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in this cylinder at a time. What is that they are saying? There is a cylinder, and this cylinder is filled with air. Let us take the air filled inside this cylinder as V. V stands for volume. The amount of air present, we will take it as volume V. So initially, first stage if I see,
first stage, the initial volume of this cylinder is V. But what is that they are saying? If you pump this by means of a vacuum pump, every time you pump, 1/4 of the air remaining in the cylinder is taken out. That means once if I pump, second condition, the second situation rather, the second time, first we will pump with a vacuum pump, and once we pump, how much amount of air is removed? 1/4 of the air remaining inside. So initial volume is V, but from that it will remove 1/4 of the air present inside this. 1/4 of the air present means 1/4 of the volume of the cylinder. तो इनिशियली तो वॉल्यूम V है, पहले सिचुएशन तो कम्प्लीटली फिल्ड था, तो V वॉल्यूम ले लिया हमने, लेकिन दूसरा सिचुएशन समझने के लिए पहले ही V वॉल्यूम था, उसमें से 1/4 हिस्सा जो इसका वॉल्यूम है वो निकल जाएगा कि पहली बार जब आप वैक्यूम पंप से पंप करेंगे. तो दिस इज द सेकेंड सिचुएशन. लेट अस सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन. You all know by using butterfly multiplication, that is cross multiply. 4V minus 1V divided by 4. Let us go ahead. This remains as it is. 4V minus 1V is 3V divided by 4. तो दूसरे सिचुएशन में पता ये चला कि 3/4 of volume is left out in this cylinder. Now one more time if I pump, और एक बार पंप करेंगे तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन गिवन, अब इसमें कितना वॉल्यूम भरा पड़ा है? अब इसमें 3/4 ऑफ V. 3/4 ऑफ V. दिस इज द वॉल्यूम रिमेनिंग इन द सिलेंडर. अब एक बार पंप करने से इसमें से 1/4 जितना वॉल्यूम है इसमें उतना निकल जाएगा. 1/4 ऑफ 3/4V. इतना वॉल्यूम था इनिशियली. तो अब और एक बार जब आप पंप करेंगे तो 1/4 इस हिस्से का भी निकल जाएगा इसमें से. सो 1/4 ऑफ द वॉल्यूम प्रेजेंट इन दैट सिलेंडर विल बी टेकन आउट फ्रॉम द वॉल्यूम दैट इज करेंटली देयर. लेट अस सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन. इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो कॉमन फैक्टर है उसको निकाल लीजिए. 3/4V is common. If I take out 1 minus 1/4 is left. 3/4V, and further if I simplify, 4 minus 1 is also 3. अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दो बार है और 4 भी दो बार है. तो डोंट आई write it like this? 3 3s are 3 square, 4 4s are 4 square. So in general I have written like this. 3/4V इसका है और V ये पहले वैल्यू का है. तो ये V पहले है, फिर 3/4V और थर्ड टर्म मिला है 3/4 स्क्वायर V, और आगे जाएंगे तो 3/4³ V मिलेगा, फिर 3/4 पावर 4V मिलेगा, एंड सो ऑन द सीरीज, आई मीन द सीक्वेंस कंटिन्यूस. तो इससे क्या मालूम हुआ? क्या ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है? नहीं सर, क्योंकि यहाँ पर 3/4V और V को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो वैल्यू मिलेगी 3/4 होल स्क्वायर V माइनस 3/4V को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो वैल्यू नहीं मिलेगी. दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम इन दिस केस. और इनफैक्ट मुझे पूछा जाए तो आपके पोर्शन और आपके सिलेबस में ये नहीं दिया गया है, केवल ये चैप्टर का नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहा गया है, लेकिन इससे पहले वाले जो सिलेबस थे उसमें जो था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन था, हार्मोनिक प्रोग्रेशन था. तो ये जो प्रोग्रेशन है ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो होता है जिसमें कि नंबर्स मल्टीप्लाई होते चले जाते हैं. जैसे कि एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, 2 4 6 8 10, ये जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस दो ऐड होते चले जा रहे हैं. डेफिनेशन में हमने वही कहा था. लेकिन अगर 2 4 8 16 32 इस तरह से सीक्वेंस है तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है. यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होते चले जा रहे हैं. मल्टीप्लाई 2 2s are 4 4 2s are 8 8 2s are 16 16 2s are 32. जब मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे तो उसको कहते हैं
हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जब ऐड होते हुए चले जाएंगे तो उसको कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मल्टीप्लाई होते चला जा रहा है। पहले v था, v के साथ 3/4 मल्टीप्लाई हुआ, फिर उसके पश्चात देखिए 3/4 होल स्क्वायर यानी कि 3/4 और एक बार मल्टीप्लाई हो चुका है, और आगे जाएंगे तो मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। सो देयरफॉर आई कैन कंक्लूड दैट दिस इज नॉट इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। दिस इज not in arithmetic progression because common differences not same। अगर आप जानना चाहते हैं कि डिफरेंस अगर सबट्रैक्ट करके देख भी ले कि क्या होता है, तो आपके इन्फॉर्मेशन के लिए वो भी लिख देता हूँ। डिफरेंस ये 2 माइनस ये 1, तो सेकेंड टर्म है 3/4v और फर्स्ट टर्म है v। इनको सबट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा 3v माइनस 4v डिवाइडेड बाई 4 माइनस v डिवाइडेड बाई 4, ये है d। उसी तरह से और आगे जाइए, डिफरेंस अगर ये 3 माइनस ये 2 सबट्रैक्ट करेंगे तो ये 3 हो गया है 3/4 स्क्वायर v और ये 2 है 3/4v। इसको और स्क्वायर करेंगे तो 9/16v और 3/4v। एंड देन बटरफ्लाई मल्टीप्लिकेशन, 9 4s are 36v, 16 3s are 48v एंड 16 4s are 64, और इनको सबट्रैक्ट करेंगे तो -12v डिवाइडेड बाई 64, और आगे डिवाइड होगा ये, इट गोज़ इन टेबल कॉल्ड एज 2 और 4 में भी जाएगा। 4 3s are 12, 4 1s are 4, 4 6 are 24, 3v माइनस 3v बाई 16 और माइनस v बाई 4। तो पता ये चला कि डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो ही नहीं सकता। तो पता चला इन दोनों सिचुएशन में कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए सीक्वेंस में जो है वैल्यूज ऐड होते चले जाएंगे, लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा तो ही मल्टीप्लाई होगा। तो इस प्रकार से पता चला कि ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट सिचुएशन जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का है। उसके लिए प्रश्न देख लीजिए। आई थिंक यू हैव नोटेड दिस। लेट अस गो फॉर द थर्ड प्रॉब्लम, एंड आई थिंक व्हेन आई राइट द थर्ड प्रॉब्लम you will be able to easily find that whether it is AP or not। थर्ड सिचुएशन कुछ इस प्रकार से दिया गया है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, खुदाई के लिए कॉस्ट कितना दे रहे हैं एक वेल के लिए। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर, हर मीटर के लिए चार्जेस होते हैं डिगिंग करने के लिए। when it costs rupees 150 for the first meter, पहले मीटर के लिए 150 रुपये लेंगे, एंड राइजेस और बढ़ जाएगा जैसे कि एडिशनल किलोमीटर के लिए चार्जेस थे, बाई ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, हर एक एडिशनल मीटर के लिए वो चार्जेस लगेंगे 50 रुपीज़। तो यहाँ पे बहुत ही सरल प्रश्न है, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, नॉट लाइक दिस एज कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ बताया गया है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल को डिग करने के लिए हर मीटर के लिए चार्जेस लगेंगे 150। तो पहले मीटर को अगर डिग करेंगे तो दे विल चार्ज ₹150। If you go ahead subsequent meters, they are charging additional amount of ₹50. 150 plus 50, 200 rupees you have to pay if you go and dig for 2 meters. Further going 3 meters if you dig, I mean, you know, it is quite obvious to understand 50-50 you should keep on adding to it. Don't you think this is arithmetic progression? Of course. How do you judge and what is the reason? Reason is the common difference is same. Second term is 200, first term is 150, though thereby this gives 50, and here 250 minus second term is 200, even this will give 50. Quite obvious as we are adding 50 for each. Therefore this situation is
AP। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड वेरी इजी वन। तो लगता है इसको नोट कर लिया आपने। आगे चलिए, फोर्थ सिचुएशन देखते हैं कि उन्होंने क्या बताया है। फोर्थ सिचुएशन, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू डाउनलोड द मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक, बिकॉज इट इज़ ईजी टू एक्सेस ऑल द क्वेश्चंस। कहाँ से डाउनलोड करें सर टेक्स्ट बुक? आप जाइए गूगल में KTBS टाइप कीजिए, वेबसाइट खुलेगा और उसमें टेक्स्ट बुक का जो होगा वो जो मेन्यू है उसको क्लिक कीजिए। उसमें बहुत ऑप्शंस आएंगे, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 10th स्टैंडर्ड तक। गो एंड टाइप फॉर दी, सेलेक्ट फॉर दी ऑप्शन कॉल्ड 10th स्टैंडर्ड। द मीडियम पूछेगा, उस मीडियम में इंग्लिश को सेलेक्ट कीजिए और फिर उसके बाद सब्जेक्ट्स पूछेगा, वेदर इट इज़ मैथमेटिक्स और साइंस और एनी अदर सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स के लिए पार्ट 1 और पार्ट 2 दो होंगे। फुल टेक्स्ट बुक डाउनलोड का एक लिंक होगा, उस पर क्लिक कीजिए, आपको 10th स्टैंडर्ड की पुस्तक मिल जाएगी। ओके, लेट अस सी द फोर्थ सिचुएशन, व्हाट इज गिवन टू अस। यहाँ पर दिया गया है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट, द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट। एवरी ईयर when 10,000 rupees is deposited at compound interest at 8% per annum। तो बताया गया है कि अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रुपीज 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। सिंपल इंटरेस्ट आपने सीखा है, वेरी सिंपल, जैसे कि नाम है वैसे ही उसका काम भी है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? PTR डिवाइडेड बाय 100। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि आपने सीखा है 9th स्टैंडर्ड, उसका फॉर्मूला कुछ याद है आपको? Is it like this? P into 1 plus R divided by 100 whole to the power of n। कुछ इस तरह से था, शायद याद होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100 होल टू द पावर ऑफ n, जहाँ के n होता है कि कितने वर्ष आपने उसको अमाउंट को रखा है। n स्टैंड्स फॉर द नंबर ऑफ ईयर्स दैट यू हैव केप्ट द अमाउंट इन योर बैंक अकाउंट। तो एक कैलकुलेशन से देखते हैं कि क्या कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। प्रिंसिपल कितना है? 10,000 रुपीज़ यू आर डिपॉजिटिंग, तो ये हो जाएगा 10,000 टाइम्स 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 8%, तो ये आर हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 100, तो पर एनम हर वर्ष के लिए। तो लेट अस कैलकुलेट कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर, n इज इक्वल टू 1। सो बाय डिफॉल्ट इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस एंड सिंपल टू कैलकुलेट दिस। ये हो जाएगा 100 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 100। ये एक्चुअली कहते हैं बटरफ्लाई मल्टीप्लिकेशन। इफ यू वांट टू ऐड टू फ्रैक्शंस वेरी क्विकली, द बेस्ट एंड द वेरी सिंपलेस्ट एंड ईजिएस्ट वे इज यूजिंग बटरफ्लाई मल्टीप्लिकेशन। ये होता है इस तरह से, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 100 ज़ा 100, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 1 8 ज़ा 8, फिर डिवाइडेड बाय इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए 100 ज़ा 100। तो इस तरह से बटरफ्लाई मल्टीप्लिकेशन होता है। तो फ्रैक्शंस दोनों बहुत तेज़ी से ऐड भी हो जाते हैं और सब्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं। 100 प्लस 8 हो जाएगा 108 डिवाइडेड बाय 100। 2 ज़ीरोज़ यहाँ से 2 ज़ीरोज़ चले जाएंगे, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 100 इंटू 108। क्वाइट ईजी है, तो इतना मिलेगा CI 10,800। इसका मतलब ये हुआ कि 10,000 डिपॉजिट करेंगे तो एक वर्ष के पश्चात आपके अकाउंट में 800 और ऐड हो जाएंगे, तो उस तरह से 10,000 बन जाएगा 10,800। सो दिस इज द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 1 ईयर। इसी तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कीजिए दूसरे वर्ष के लिए। इफ द अमाउंट डिपॉजिटेड इज केप्ट इन द बैंक फॉर 2 years, then the principal is 10,000, quite obvious. 1 plus R is 8 and now n changes to 2 because 2 years. And calculate कीजिए 10,000 into ये butterfly multiplication आप जानते हैं। I will go directly now because now you are knowing that you will get 108 itself. Square आएगा, that means 108 into 108 divided by 100 into 100.
तो 2 zeros 4 zeros चले जाएंगे तो 108 into 108 बच जाएगा. So we have to multiply these two. 108 into 108, 8 8 जा 64 आएगा, तो 6 ले लेंगे, 8 1 जा 8 प्लस 0 0 0 आएगा और फिर से 108 ऐड कीजिए, 11664. तो देखिए यहाँ से पता चल जाएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वैल्यूज़ बढ़ते चले जा रहे हैं और वो कोई ऑर्डर में नहीं है. 10,800 पहले तो था 10,000, फिर 10,800, फिर 11,664. तो वैल्यूज़ आर नॉट कंसिस्टेंट एज द सीरीज एंड द सीक्वेंस यू आर सीइंग हियर. तो पता ये चला कि कंपाउंड इंटरेस्ट थर्ड ईयर के लिए भी कैलकुलेट कर लीजिए और अंत में देखिए कि वो जो वैल्यूज़ दिए गए हैं वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में नहीं है. तो देयरफॉर ये जो सिचुएशन है, दिस इज ऑल्सो नॉट इन एपी, दिस इज नॉट इन एपी. तो ये था तुम्हारा फर्स्ट एक्सरसाइज 1.1 के 4 सिचुएशंस जो कि फर्स्ट मेन में दिए गए हैं. और एक्साइटिंग बात यह है कि सेकेंड मेन और थर्ड मेन और फोर्थ मेन में आपको इतनी जानकारी दे दी है इन्होंने दैट यू विल बी वेरी नाइसली अंडरस्टैंडिंग द यंथ टर्म ऑफ एपी विच वी डिस्कस्ड. किस तरह से यंथ टर्म का उपयोग होता है, सो दैट डिटेल्स यू विल अंडरस्टैंड इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज 1.1. तो फर्स्ट मेन, आई होप दैट इट is very clear to you all. You have understood. Go through the video again and again. Go out and explore this. See properly that if you have not understood, please do comment. But if you, I feel so that you have understood the situation, how to judge whether this is arithmetic progression or not. तो ये एक्सरसाइज का पहला मेन था. So therefore it was just introduction of how to judge and justify whether the given sequence is arithmetic progression or not. तो इस तरह की situations आप भी बना सकते हैं and come to conclusion whether they are in AP or not. उसको कहते हैं क्यूरियोसिटी. जो पहले इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बताया कि स्टूडेंट्स के अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए. सो व्हेन वी आर सीइंग द सिचुएशंस, यू क्रिएट योर ओन सिचुएशंस एंड कम टू कंक्लूजन द गिवन सीक्वेंस इज AP or not. तो आगे बढ़ने से पहले मैं एपिसोड 5 में आपके लिए 3 असाइनमेंट प्रॉब्लम्स दिए थे. होप यू आर ईगरली वेटिंग फॉर द आंसर्स. चलिए उसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं. आंसर्स ऑफ एपिसोड 5. तो पहला जो वैल्यू दिया गया था, इट वॉज 2, 5, 8. आई वॉन्टेड यू ऑल टू ऐड दिस अप टू 12 terms. ठीक कहा ना? एंड आई टोल्ड यू टू आई रिक्वेस्टेड यू टू फाइंड दिस समेशन ऑफ द सीरीज बाय बोथ वेज, मदर फार्मूला और अदर फार्मूले से, और वेरीफाई कीजिए. आई एम शोइंग यू द मदर फार्मूला, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d. तो n की वैल्यू यहाँ पर दिया गया था 12 terms. I might have done like this. n/2 would have been 12 divided by 2. 2 इंटू a की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 12 है और डिफरेंस आपने ढूंढ लिया है. 5 - 2 is 3. 12 और 2 को डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा. 2 1 = 2, 6 = 12 और 2 2 = 4. 12 - 1 हो जाएगा 11 इंटू 3. तो बोर्ड मास रूल कहता है कि आपको पहले मल्टीप्लाई करना होगा. 11 3 = 33. 6 इंटू 33 प्लस 4 हो जाएगा 37. एंड लेट अस मल्टीप्लाई दीज टू एंड क्रॉस चेक योर आंसर्स आर करेक्ट और नॉट. 7 6 = 42. 6 3 = 18. 19 20 21 22. आपको 222 मिला. यस, 12 का आंसर. इफ यू हैव गॉट, यू आर ऑन द ट्रैक. चलिए दूसरा असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या था. इट वॉज अ टेबल ऑफ 3, आई थिंक 3 6 9. ये दिया था मैंने अप टू 15 terms. ठीक है, चलिए देखते हैं. Sn का फॉर्मूला n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d. अब n के स्थान में आएगा 15 बिकॉज s 15 यू आर कैलकुलेटिंग. n/2 विल बी 15 डिवाइडेड बाई 2. 2 इंटू ये वैल्यू इज 3 प्लस n वैल्यू इज 15 इन दिस केस एंड डिफरेंस बिकॉज इट इज 3 टेबल, सो कॉमन डिफरेंस इज 3. 15 और 2 डिवाइड नहीं होंगे तो ऐसे ही रख लेते हैं. 2 3 = 6. 15 - 1 हो जाएगा 14 इंटू 3.
15/2 एज इट इज, 6 प्लस 14 और 3 मल्टीप्लाई कीजिए, 3 4 ज़ा 12 एंड 3 1 ज़ा 3, 42 आएगा। 42 और 6 को ऐड कीजिए, 48 आएगा। एंड नाउ वी कैन डिवाइड दीज टू, 2 1 ज़ा 2, 24 ज़ा 15 into 24. I'm just running through this because you have already calculated. Just to cross check your answers, I'm showing the complete calculation also. 5 4 ज़ा 20 and 4 1 ज़ा 4, 5 6 और 15 2 ज़ा हो जाएगा 30, 360। तो इसका उत्तर होना चाहिए 360। I think you have got this. Those have got, congratulations again. और तीसरा जो है वो प्रश्न था किस क्या वैल्यूज थे, 258, 369 और 468 ये दिया था मैंने, अप टू 25 टर्म्स। एम आई राइट? चलिए एस एन का फॉर्मूला ले लेते हैं, n डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d, n is 25, so this will be 25 divided by 2, 2 into a is 4 plus n minus 1 will be 25 minus 1 and difference in this case is 2. इतना कैलकुलेट किया होगा आप लोगों ने, 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 4 2 ज़ा 8, 25 माइनस 1 इज 24 इंटू 2। ये 25 और 2 भी डिवाइड नहीं होंगे, कीप एज इट इज। 8 प्लस 4 2 ज़ा 8 एंड 2 2 ज़ा 4, 48 प्लस 8 कितना होगा, 2 ज़ा 16 एंड देन 56, और ये दो डिवाइड होंगे, 2 28 ज़ा इज 56, 25 इंटू 28, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा। चलिए देख लेते हैं, 25 इंटू 28, 8 5 ज़ा 40, 8 2 ज़ा 16, 17 18 19 20 एंड 25 2 ज़ा इज 50, 700। होपफुली यू might have got this as the answers. तो पहला वाला 222, second will be 360 and the third will be 700. I think you have done this as assignment and I am just showing by using the mother formula. You might have practiced it by other formula also. You might have got the same results. So with this episode 6 I am concluding, and the next episode exercise 1.1 second main will come in front of you, and I hope you are enjoying at home by learning mathematics in a very simple manner. And going ahead, please do comment us to know what doubts you are following on these exercises, and for that I again request you all to please subscribe, those who are seeing this channel for the first time, because my aim is to make you smart, make you talented and keep you happy as well. Thank you.